एक ऐसा टाइम मेरी लाइफ में तो ऐसा आ गया था ना जब मैंने एकदम दिल पे ले लिया था. 6 महीने आई वॉज लाइक डे एंड नाइट जस्ट थिंकिंग अबाउट माई वेट लॉस. बदतमीज भाभी को ना पलकों पे बिठा के रखते हैं. तो माई मदर इन लॉ वॉज मेकिंग रोटी और समथिंग. शी केम आउट ऑफ किचन एंड शी इज लाइक तो भाभी होनी भी चाहिए ना वैसे. आई यूज टू थिंक कि इंटिमिडेट होना मतलब ओ माई गॉड ऐसा वाला डर होता है स्टार्टिंग में, ठीक है. आई वाज लाइक नहीं, ये और ट्रिगर होते हैं. आप जब मिरर में देखते हो ना, ये सोसाइटी आप पे इतना प्रेशर डालती है ना कि आप कम करने के बाद भी आप तो खुद को मोटा ही देखते हो. Welcome to BTS. How many times have you looked at yourself in the mirror and felt like मजा नहीं आ रहा यार? If this sounds like you, which is basically like 99% of us. So if this is something like you, then you have to listen to today's talk show. Let's welcome Shama Mijari, who talks about body positivity. Hi Shama, how are you feeling today? Hi Bharti, I'm doing good. How are you? I'm doing absolutely great. I'm so happy to hear that. So guys, before we start, let me tell you a quick bit about Shama. She is someone who is body positive, and forget about body positive. She's generally also a very positive person. At least that's what I have come across. At least that's what my face says right now. No, but generally also as much as I've Yes. spoken to you, you come across as a person who looks forward to life, someone who has a zest for life, which not a lot of people have. So that is something that I would like to delve more into the podcast. And I have seen your content, the type of content that you create. It's amazing. So why don't you go ahead and tell something about yourself, Shama? Okay, Bharti, first of all, thank you so much for watching my content. Like this, I want to take this platform and thank each and everybody like who has been watching my content because you guys have been paying my bills. So thank you so much. Other than that, you know, I don't have much to tell about myself. I'm a very normal person. My name is Shama Mijari. I am born and brought up in Mumbai and a hardcore Maharashtrian mulgi. Other than that, I do content creation full time. So I create content around travel and my lifestyle, and I love doing it. I'm one of those people who are like really happy with what they are doing. So, regarding the body positive thing that you mentioned, I am very surprised because since last 2-3 years I've been on this journey, and definitely body positive mentally before that, but finally I've started to accept it now. So I'm very happy that when somebody is talking about me, this is one thing that they're mentioning. Like this is like a achievement for me, a baby achievement. So thank you so much for that. So why don't you tell us, where did this journey start from? See, I'll tell you, I was always, if you look at me, I'm 5'7", a very healthy girl. So I've always been this way. I was always on the heavier side. So somewhat, I think, more than me, it made a lot of other people awkward. And that is the reason they tried to put it on me a lot of times. So after a very, after my teenage and everything, that was the first time I started realizing that, okay, I am maybe different. And it started coming as of like the society was introducing this concept to me first time that कुछ तो इसमें गड़बड़ है जो इसको सुधारनी है. कि मतलब पहली बार मैं वो रेक्टिफिकेशन जोन में एंटर कर रही थी. एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है. आई थिंक यू ऑल्सो मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग दिस कि ये जो टीनेज के बाद का टाइम होता है ना, दिस इज द टाइम ना आपको पहला रिपोर्ट कार्ड मिलता है. जब आपको सोसाइटी बताती है अच्छा ये बाकी सब तो ठीक है, इस पे फोकस करो, ये घटिया है. तो ये मेरा टाइम था. एंड इसके बाद लाइक आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द हेवियर साइड. उसके बाद भी आई हैव बीन अ पर्सन हु हैज लाइक वर्कड आउट इन हर लाइफ. आई हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ वर्कआउट्स. बाय द वे, मुझे देख के ऐसे बहुत लोगों को ऐसे शॉकिंग लगता है जब मैं उन्हें बताती हूँ कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेट ट्रेनिंग. नॉट दैट आई डू इट राइट now because of some other issue, but yes, I'm very fond of weight training. I've done Zumba. I loved Zumba. I can't tell you how much I love Zumba. And then I've done aerobics. इतना aerobics किया है कि मैं गिरी भी हूँ. इतना aerobics किया है. I love it. So people somewhat find it very difficult to like believe कि okay, a fat person can do all these things also. हाँ. So काफी एक through thorough journey रही है मेरी, जहाँ पे पहले वो रिपोर्ट कार्ड मिला, फिर मिला अच्छा मेरे में कुछ प्रॉब्लम है. Then I started working out. Then I'm like अभी भी कुछ प्रॉब्लम है. एक ऐसा टाइम मेरी लाइफ में तो ऐसा आ गया था ना जब मैंने एकदम दिल पे ले लिया था. 6 महीने आई वॉज लाइक डे एंड नाइट जस्ट थिंकिंग अबाउट माई वेट लॉस. लाइक आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस. आई लॉस्ट लाइक गुड अमाउंट ऑफ वेट, लाइक 20-30 kgs I lost. And you won't believe that there was a moment after the weight loss
I'm climbing stairs in my gym, and I'm just like sitting and crying, and my trainer is like, what happened? And I'm like, I can't do it anymore, I'm tired. And he's like, why? I'm like, कुछ हो नहीं रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ ये? So he's like, अरे मैं आपको बताता नहीं हूँ, बट बहुत वेट लॉस हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि आप जब मिरर में देखते हो ना, ये सोसाइटी आप पे इतना प्रेशर डालती है ना कि आप कम करने के बाद भी आप तो खुद को मोटा ही देखते हो. Yeah. यू सी दैट चेंजिंग द लेंस फॉर यू. Yes, yes. सो उसके बाद भी ऐसे नहीं हुआ कि बस रातों रात आई एम लाइक ओके नाउ आई एम गोना बी लाइक दिस. बट हाँ, थोड़ा टाइम लगा. So do you think that the society is fat phobic? द सोसाइटी इज नॉट फैट फोबिक. Okay. ओके, बट फैट फोबिया अगर आप मेरे को पूछोगे कहाँ से आया है, तो ये सोसाइटी से आया है. Okay. एंड वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. Yes. सो यू नो, जो हम लोग को बचपन से बताते थे ना कि बच्चों को बोलते हैं अरे भगवान कहाँ है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या सिखाते हैं, अरे भगवान तुम्हारे अंदर है, हर एक इंसान के अंदर है. Yes. तो ये फोबिया भी आपके अंदर है, आप सोसाइटी के अंदर हो. So do you think a society is brutal towards people who do not fit into the category of those ideal beauty standards? आई थिंक ब्रूटल बहुत अंडरस्टेटमेंट होगा. Okay. Yes, and I won't say they are brutal. They are like out there. Like एक होता है ना कि आप जंगल में जाते हो तो शिकारी भी है, शेर भी है. तो यहाँ शेर से ज्यादा शिकारी डेंजरस है. शेर तो बहुत अच्छा है, शेर को तो बगल में लेके बैठ सकते हो. सोसाइटी इज दैट वे. आई वोंट से, यू नो, बहुत लोग को सुनने में ये लगेगा कि बहुत निगेटिव अप्रोच है, पर अगर आप अपने आसपास देखोगे ना, हम लोग इतने ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं हर एक चीज को लेके. मतलब आप सिंपल ले लो, आपका कोई दोस्त होगा हर एक ग्रुप में, देयर बी समबडी हु विल बी ऑन अ हेवियर साइड, देयर बी समबडी हु विल बी ऑन अ लाइटर साइड. बट इतनी सिंपल सिंपल चीज़ों से होता है. लोग प्यार से किसी को गोलू बुला देंगे, मोटू बुला देंगे, उसमें कुछ क्यूट नहीं है. बाय द वे, कुछ भी क्यूट नहीं है. अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप जिस इंसान को गोलू बुला रहे हो ना, अच्छे से उसके आंखों में देखो, आपको समझ में आ जाएगा. दे आर नॉट फाइंडिंग इट वेरी क्यूट. सो आई थिंक सबसे पहले तो यू नो, लोग बोलते हैं ना कि अरे एक बैरियर मत रखो, खुले में जाओ, मत जाओ भाई खुले में, बैरियर रखो. And you also mentioned that, you know, society is brutal, and brutal is also an understatement. एब्सोल्युटली. So I want to understand what might have happened for you to even say this. I'll tell you, like, you know, first of all, I'm still facing this issue. Like the first thing, when people see me, in fact on social media also, in my content also, I see 60 to 70% of the audience that see me. अगर उनको आप पेपर दोगे ना एंड मेरे बारे में कुछ बोलने को बोलोगे, तो मेरा 10 मिनट के वीडियो देखने के बाद भी मी बीइंग फैट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट दे विल राइट, और मे बी द सेकेंड स्टेटमेंट. आई थिंक वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है, बहुत. मतलब इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ है नहीं क्या? मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे क्या थॉट्स है, आप चाहे मेरे थॉट से अग्री ना करो, वो बोल दो, दैट विल मेक मी हैप्पियर देन दिस. कि आप इतना एक बाहरी उससे आप इतना जज कर रहे हो. I think that comes with a bit of self-awareness, because when you said that you are also judgmental, it is coming from a place of self-awareness. तो I think कि self-awareness की कमी है सोसाइटी में. जितना आप वो उंगली कहते हैं ना कि जब आप फिंगर पॉइंट आउट करते हो तो आपके पास 4 उंगली आपको पॉइंट आउट करती है. तो when you start looking at yourself, when you start reflecting on the actions that you are doing, is the point when you go into self-awareness, and आपको पता चलता है कि आप में खुद में कितनी कमियां हैं. एब्सोल्युटली. And where do you think that this started in your life, this self-awareness वाला journey? Where did this start from? आई थिंक इसका मैं 100 क्या 200% क्रेडिट आई विल गिव टू माई कॉन्टेंट क्रिएशन. Okay. या बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज, नो भारती, आई एम स्टिल वेरी पर्टिकुलर अबाउट एंगल्स. आपने नोटिस किया होगा, मैंने आके आपको हाई हेलो के पास थर्ड चीज़ यही पूछी कि हम बैठने कहाँ वाले हैं, बिकॉज आई एम मोर कॉन्फिडेंट इन अ सर्टन एंगल ऑफ माइंड. I am still working on this. Like I have my partner who shoots videos for me. He is still like, बहुत बार मैं उससे रीटेक्स कराती हूँ कि नहीं यार ये एंगल मेरा सही नहीं है. एंड ही इज़ लाइक, क्या वीडियो क्रिएटर बनेगा रे तू, कि मतलब इतना तुम अगर कॉन्शियस रहोगे कि तुम कैसे दिख रहे हो. बट ये कहीं ना मतलब ये आया उसी मोमेंट से है जब मैंने अपना जर्नी चालू किया क्रिएशन का. धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड लाइक सीइंग मोर ऑफ माई सेल्फ, एंड उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे व्यूअर्स, फॉलोअर्स
एंड यू नो उन्होंने बहुत लोग है ना अच्छे कमेंट्स जब करते हैं ना उन्हें पता नहीं है उसकी क्या पावर होती है. एंड कमेंट से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी ना मुझे बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स, जबकि मेरा कंटेंट पर्सनल था भी नहीं तब मेरा कंटेंट प्योरली ट्रैवल रिकमेंडेशंस पे था, बट फिर भी मुझे बहुत सारे पर्सनल फीडबैक्स आते थे मेरे डीएम्स में. लोग शायद कमेंट्स में बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते थे एंड समवेयर लाइक एक क्रिएटर बोलेगा कि नहीं यार कमेंट्स में तो एंगेजमेंट बढ़ जाते, बट मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता था कि यार कोई अपनी ज़िंदगी से 10 सेकेंड निकाल रहा है मुझे डीएम करने के लिए. मैं हूँ कौन? And what were these DMs like? These DMs were majorly about how I carry myself. I didn't know I was so confident until people started telling me this. Okay. And most of them were girls exactly like me. Like when I was watching their Chotu Sa DP, it was me. And I had no idea, like I had such gang out there who was there, and they're like, you know, they're like, oh, we love this dress on you, we love the way you carry yourself, you look so good, you look so happy. And मैं तो पिघल जाती थी मैं उधर. मतलब मैं देखती हूँ ना इतना प्यार मैंने असली जिंदगी में नहीं बरसाया होगा मेरे साथ वालों पे जितना मुझे उन पे आता है, because it is very pure. Understandable. And it comes from a space where I have been. So I will take you back there. I firstly want to understand कि जो society आपको certificate देती थी, was there any moment where you felt or maybe an incident wherein people made you feel that you're not acceptable because of your weight? कौन से moments बताऊँ मैं? Really? Yeah. Is that how exclusive the society Yes, is? it starts from the shopping malls. Okay. Yeah. Because you don't have your size dresses? Yes. Thankfully, I'm in a generation right now where there are a lot of people who are making size inclusive clothes. It starts from there. अरे वो छोड़ो, मेरे पैर का साइज इतना बड़ा है बिकॉज मेरे फीट के आसपास फैट है, मुझे चप्पल नहीं मिलते इंडिया में. Wow. Can you imagine? You know, one of the horrifying moment of my life is going to buy a चप्पल. Is it? मतलब अब मुझे हर बार शूज खरीदने के लिए अब्रॉड ट्रैवल करना पड़ेगा. सो बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं. आप एक सोसाइटी के एक स्पेस में जाओ, आपको 6 महीने बाद कोई तो आपका रिश्तेदार दिखेगा, वो आपको क्या बोलेगा, बाकी सब बाजू में गया कि बेटा तुम खुश हो, तुम कैसे हो, तुम क्या हो, अरे बहुत मोटी हो गई है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था. Typical Indian mentality. Yeah, and I won't even call it an Indian society. I think ये abroad में भी होता होगा. It's a human nature. Somewhat. But they don't call it out like that, I feel. Yeah. Because यहाँ पे they'll rub it on your face. Yes. So that's bad. That hurts more. And it hurts like anything. Like आप किसी फंक्शन में सोचो ना, आप पूरा डेक्ड अप होके जा रहे हो, you think you're looking the best of yourself, and the first thing somebody ना ऐसे लगता है एकदम वो फीलिंग आती है अंदर से, and then you control yourself. You can't. The worst thing is आप कुछ बोल ही नहीं सकते. So in this journey, what has been the harshest somebody has ever told to you or did to you? पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं खुद को जैसे रखती हूँ ना बाहर, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कभी सुनने को मिली नहीं है. Okay. हाँ, मैंने अपना ऐसा खौफ रखा है. That is how I'm gonna tell this. जरूरी है, Because लोग बोलते हैं, मैंने देखा है लोग दूसरों को बोलते हैं, लोग मेरे सामने भी दूसरों को बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मुझे नहीं बोलना चाहते होगे, बट थोड़ा सा मैंने खुद को ना पहले से ही थोड़ा ऐसे रखा है कि आई ऑलवेज केप्ट, लाइक कितनी भी दोस्ती चाहे क्यों ना हो, आई ऑलवेज केप्ट अ बाउंड्री कि इसके आगे अगर तुम मुझे बोलोगे तो बेटा सुननी तो दोनों को पड़ेगी. दिल अगर मेरा दुखा है तो दुखेगा तुम्हारा भी. ठीक है, एकदम, क्योंकि दोस्ती कैसे ना बराबर की होनी चाहिए. बट इसके बावजूद भी एक जो होता है ना जिसमें हमें बिल्कुल मतलब आप अवॉइड नहीं कर सकते, दीज आर द रिलेटिव्स. मतलब हार्श थिंग तो मैं यही बोलूँगी जो मेरे दिल को एकदम ऐसे लगी कि क्या बोलते हैं लोग. I'll tell you something, like it's too personal, but it's okay, like we can do that. So I'm married. I have a very loving family back home, and my mother-in-law, you know, she's very loving and everything, but she's always had problems with my weight. And because she is very lightweight, so she's like maybe she's not very comfortable around this, and she's always been like कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए बोलती हूँ या जो भी है, जो उनका जेन्युइन कंसर्न भी है. बट फिर भी, यू नो, वंस आई वाज लाइक सिटिंग इन माई होम, माई ससुराल इन उत्तराखंड, एंड आई वाज ईटिंग अपना चपाती भाजी, मैं बैठ के खा रही थी, एंड माई ब्रदर इन लॉ केम
मेरा देवर आया और उसने मेरे को ऐसे ही कुछ, तो उसका मेरा कुछ बैंटर चल रहा था, तो हम लोग कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा बदतमीज़ भाभी को ना पलकों पे बिठा के रखते हैं। तो माई मदर इन लॉ वॉज मेकिंग रोटी और समथिंग, शी केम आउट ऑफ किचन एंड शी इज़ लाइक, तो भाभी होनी भी चाहिए ना वैसी पलकों पे बिठाने वाली, नाजुक सी या ऐसा कुछ। एंड आई वॉज लिटरली लाइक आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट, somebody should have given me a heads up for it। एंड मैं खा रही थी एंड मेरे लिए वो बहुत ही, मतलब एक तो मैं बहुत कम रोती हूँ, रोने वालों में से हूँ नहीं मैं, तो उस मोमेंट ऐसा था ना कि मतलब मैं खाना खा रही हूँ, वो सब कुछ एक साथ हो रहा था मेरे लिए, सब कुछ स्लो हो गया था मेरे लिए कि ऐसा कैसे इन्होंने बोल दिया, मतलब बोला उन्होंने मजाक में ही, बट जब वो बोलता है ना कि आप बोलते तो हो बट सामने वाले पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, हम लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग बहुत कम बार सोचते हैं ये, एंड ये जब बाद में रियलाइज होता है ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरे साथ तो वैसा ही मोमेंट था कि मतलब दैट इज़ वन थिंग ना, मे बी आई विल नेवर फॉरगेट लाइक समथिंग, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, आई न्यू शी हैड प्रॉब्लम्स विद इट, बट लाइक ठीक है यार, इतना क्या है, मतलब कि आपके प्यार के भी ऊपर अगर कभी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, एंड आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी एकदम मतलब मेरे घर के फ्लैट की भी ऊपर आती है, तो वहाँ पे जाके जब ऐसा सुनना पड़े ना तो इट डजंट फील वेरी गुड। सो आई थिंक दैट वाज वन थिंग ना जो मुझे मतलब एकदम अंदर लगी है एकदम। यस यस यस, आई थिंक मैं कभी जिंदगी में एब्स भी निकाल लूंगी ना तो भी वो चीज़ मुझे हमेशा खटकेगी कि ऐसा क्यों बोला, एंड सॉरी मम्मा, बट हाँ बुरा तो लगा था। देखो सो आप कह रहे हो कि आपकी बाउंड्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड फॉर अ पर्सन लाइक यू समबडी कुड से दिस, आई कांट इवन इमेजिन अबाउट द पीपल हु डोंट हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, स्पेशली women, right? So what can people with low boundary setting qualities do about this? फर्स्ट थिंग यू नो, लोग ना आपको बहुत सारी गलत चीज़ें बताते हैं, जैसे पीपल आर लाइक यू शुड नॉट वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग, नो यू कैन वॉक अवे। ठीक है, अगर ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन है जैसी मेरी ये वाली सिचुएशन थी, जिसमें मतलब अब मैं उनको उल्टा बोलना नहीं चाहती क्योंकि मेरे से पहले तो बहुत बड़े हैं और ऊपर से मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं जस्ट बिकॉज उन्होंने मेरा दिल दुखाया तो मैं उनका उस चीज़ में दिल नहीं दुखाना चाहती। सो आई एम लाइक ठीक है यार, चलो 4 बातों के साथ 5वीं ये भी सुन ली। बट अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है, यू हैव प्रॉब्लम विद इट, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या आप खुद को मतलब होल्ड नहीं कर पाते हो, और कोई भी आपको बोल जाता है, लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं, तो आई थिंक सबसे पहले आपको यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। तब तक कुछ नहीं होगा, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? तो द नेक्स्ट मोमेंट इट सेल्फ, इफ समबडी इज हियरिंग दिस राइट नाउ, मैं तो बोलूँगी अगले 2 सेकेंड में भी अगर आपको कोई कुछ बोले ना, तो यू डोंट हैव टू बी एंग्री अबाउट इट, यू डोंट हैव टू बी लाइक वेरी ओ ऐसा कैसे बोल दिया अब तो मैं रोने लग जाऊंगी, या यू डोंट क्रिएट अ ड्रामा अराउंड इट, बट यू कैन बी क्रिस्प क्लियर वे में आप उनको बोल सकते हो कि दिस इज़ नॉट ओके, आई डिडंट लाइक दिस। अभी इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, बस कि जब आप लोगों को समझदारी से बोलने लगते हो ना तो लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि एक बार आप झगड़े में बोल दो किसी को कि ऐसे कैसे तूने मुझे बोल दिया, तो लोग फिर भी उस चीज़ को थोड़ा सा वैसे ले लेते हैं कि हाँ तो क्या हो गया बोल दिया। पर जब आप समझदारी से उन्हें बताते हो ना तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो अच्छी बन गई, अब मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ में ना थोड़ा मैं बोलूँगी कि थोड़ा आप बोलो अच्छे से, अगर नहीं समझ रहे तो ये उनकी प्रॉब्लम है, देन द बॉल इज इन देयर कोर्ट, you live it that, but आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। That takes a lot of courage. Yes, a lot of courage. I think अपनी गलती मानने से भी ज़्यादा करेज इसमें लगता है। क्या होता है ना, हम डरते हैं। Fear is the strongest thing that a woman has. प्लस मैं बताती हूँ सबसे ज़्यादा लोग मतलब जो ऐसे लो प्रोफाइल एंड लो बाउंड्रीज रखते हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, ये खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं। Yes. इसके लिए वो नहीं बोलते। Yes. मतलब अगर मुझे कोई बोले कि कितनी मोटी है, तो अगर मेरी लो बाउंड्रीज है तो मैं सोचूंगी हाँ मोटी तो मैं हूँ ही ना, और क्या सुनूंगी, हेलो। तो अगर मुझे नहीं सुना अच्छा लग रहा है वो, तो कोई मुझे क्यों बोलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं सुनना अच्छी लग रही है तो आप उनको बोलो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। People just take it just as a license कि ठीक है सामने वाला बोल रहा है मैं बोल नहीं सकती and I just have to hear it. So they themselves don't value themselves as much as they think they should be getting. Exactly. लोगों को ऐसे ही लगता है कि अरे मैं अभी ऐसी हूँ तो मुझे और अब क्या बोलेंगे, अब तो मैं जब पतली हो जाऊंगी तब जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी, मतलब इस सबसे एंड में आपकी वॉइस आती है
अरे कितना वेट करोगे, शायद आप कभी पतले हो भी ना, तो क्या इन सबको छोड़ दोगे ऐसे ही? इतना ड्रामा है आपकी लाइफ में, जियो उसको, गो फॉर इट। जो लोग बोलते हैं ना यार मेरी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई, वो इसलिए हो जाती है। लोग अपनी लाइफ में ये सब आते हैं ना छोटे मोटे ड्रामा, इसको जीते नहीं है। बिग बॉस बनाओ अपनी लाइफ को, गो फॉर इट। नहीं ऑनेस्टली यार, मतलब कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा। देखो अगर सामने वाला समझदार है, वो खुद ही समझ रहा है आपके चेहरे से, तो आपसे जेन्युइनली प्यार करता है, तो अच्छी बात है। पर अगर नहीं समझ रहा है तो बताना तो पड़ेगा। अगर वैसे बोल के नहीं समझ रहा है तो बार बार बताना पड़ेगा। पागल तो है नहीं, समझ ही जाएगा। So I'll again ask this question for people who are on the heavier side, especially women, if they have to start speaking, let's say to some person of authority and they don't know where to start. So वो जो voice आती है वो कहाँ से आती है and where is that first step, actionable first step where they can start? What will you say about मुझे that? लगता है it comes from a hurt space। थोड़ा ना खुद को हर्ट होने दो। अब अगर नहीं आ रहा है ना, अगर आई यूज़ दिस वर्ड कि इसको गाली मत समझना, बट आई यूज़ दिस वर्ड कि ज़्यादा बेशरम ना अगर बन रहे हो ना, तो थोड़ा बेशर्मी को हटाओ। अब जब ज़्यादा बुरा लगेगा ना तो अपने आप मुंह खुलेगा, सबसे पहले शायद मुंह ही खुलेगा। Do you think hurt is so necessary for you to open up? Yes, if the person is not opening up the other way, and I don't know, लोग बोलते हैं you know जिंदगी, आपको तो पता ही है जिंदगी ऐसे तो नहीं चलती है। यू आर हैप्पी तो यू गोना बी हर्ट एज वेल। सो लेट दैट स्पेस ब्रिंग आउट समथिंग पॉजिटिव। कोई भी आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसे आ रहा है इमोशन, तो अपने इमोशन से कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो। तो अगर बुरा ही लग रहा है तो उसमें कुछ अच्छा ही हो फिर आपके लिए कम से कम। अगर दूसरों का नहीं, आप ऐसे सोचोगे नहीं मैं अपने घर में शांति रखना चाहती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अच्छा रहना चाहती हूँ, या तो आप अच्छा रह सकते हो या आप खुश रह सकते हो। द चॉइस इज़ योर्स। आपको खुश रहना है तो थोड़ा सा बुरा तो बनना पड़ेगा, देखो, वरना लोग अच्छे रह जाएंगे और आप सैड। तो आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, द कॉन्फिडेंस दैट यू कैरी, डू यू थिंक हैज इट एवर बीन अ थ्रेट टू समबडी और टू सम सिचुएशन? थ्रेट इन अ वे, मतलब आपके कॉन्फिडेंस से कोई और इंटिमिडेट हो गया हो? बहुत बार मेरे साथ ये हुआ है। एंड यू नो बहुत बार हमें अपने बारे में हम कैसे हैं ये खुद से ज़्यादा सोसाइटी बताती है। तो बहुत बार मुझे ना अपने बारे में जो फीडबैक्स आते हैं, जो जोमेटो रिव्यूज़ आते हैं, उसमें मुझे यही पता चलता था कि आई हैव अ वेरी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी एंड आई हैव अपरेंटली दे लाइक टू कॉल मी वेरी ओपिनिएटेड। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड आई डोंट अंडरस्टैंड स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस क्या होता है। ओपिनियंस होता है तो आइदर आई हैव ओपिनियंस और आई डू नॉट हैव ओपिनियंस, तो आई कम इन दिस कैटेगरी। अभी इससे क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब बाहर, जैसे मतलब मैं बहुत घूमती हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई एम ऑलवेज मीटिंग न्यू पीपल एंड आई एम ऑलवेज ब्रिंगिंग न्यू पीपल इन टू माई लाइफ बिकॉज आई लव लाइक दिस। ऐसा मेरे को ऐसा चाहिए ना लाइफ में, ऐसा मेला लगा रहना चाहिए। ट्रू एक्सट्रोवर्ट। एब्सोल्युटली, आई लव दिस। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ लोगों को आपके जैसे इंसान को देखने की या सुनने की आदत नहीं होती, स्पेशली जिस वर्क स्पेस में मैं हूँ, या मेरे जैसी आज के टाइम पे हज़ारों करोड़ों लड़कियां हैं जो मे बी वो अथॉरिटी तो वो कर लेंगी मेरिट पे, पर उस अथॉरिटी पे लोग बोलेंगे, एक होता है ना, अरे यार लड़की बॉस है, क्या है बॉस है, लड़की छोड़ो बॉस है। तो वो थोड़ा सा होता ही है। मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है, जहाँ पे मतलब लोगों ने पेमेंट तक आके मेरे हस्बैंड के हाथ में दिया है एंड माई हस्बैंड लाइक मुझे क्या दे रहे हो, उनको दो, बिकॉज ही इज दैट ओपन माइंडेड एंड ही इज लाइक ओ माई गॉड, पता नहीं उसको तो एकदम बनाया है मेरे लिए ऐसे कि जैसी मैं हूँ उसके लिए वो परफेक्ट है। तो उसने बोला है कि शी इज़ द मेन, उसको दो, उसका है। तो होता है थोड़ा, लोग कभी कभी इतने इंटिमिडेट हो जाते हैं कि दे स्टार्ट सेइंग ब्रूटल थिंग्स, दे स्टार्ट लाइक टेकिंग एवरीथिंग ऑन द हार्ट। फिर लोग पेट्रियार्कल बातें करने लग जाते हैं। Can you tell an incident or two about it? या I'll tell you. In fact, I'll tell you the most recent incident. कि हम लोग अभी मनाली जा रहे थे, तो हमने बॉम्बे से ट्रेन करी हुई थी एंड हम लोग 3 लड़कियां थे, 3 दोस्त, हम कॉलेज से भी पुराने, लाइक ऑलमोस्ट स्कूल कॉलेज के दोस्त है, तो काफ़ी 15 साल पुरानी दोस्ती है। ऑल 3 of us are married and all 3 of us are independent, financially, emotionally, all kinds of independent. So हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे ना हमारी ही बोगी में हमारी बर्थ के साथ 2 19 साल के लड़के थे। तो एक होता है ना, जब इतना लंबा सफ़र होता है तो थोड़ी बहुत तो बात हो जाती है एंड वो लोग भी यहाँ के लोकल थे। तो उनमें से वेरी स्वीट बॉयज़, वेरी नाइसली टॉकिंग एंड एकदम मतलब कोई वो नहीं है। तो
तो उसमें से कुछ लड़कों से पहले जब उनको पता चला कि ओ यू गाइज आर नॉट मैरिड, यू गाइज आर मैरिड, तो एकदम उनको शॉक हो गया. तो हाँ वो थोड़ा बहुत होता है, बिकॉज अभी सब लोग तो ऐसे एकदम टिपिकल अटायर आई कॉल इट नहीं पहनते, बिकॉज अ पर्सनल चॉइस. ऑफ कोर्स. कैसे आप खुद को कैरी करना चाहते हो, मे बी आप नहीं चाहते कि फर्स्ट थिंग लोग आपके बारे में ये नोटिस करें कि ये. तो वो दे वर मे बी लिटरली लिटिल लाइक शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड अबाउट इट. आफ्टर दैट देयर वाज दिस गाय दोनों में, जिससे हम कुछ नॉर्मल बात कर रहे थे. तो एक दो बार उन्होंने कुछ यू नो होमोफोबिया के बारे में कुछ टॉपिक निकला. तो मी एंड माई फ्रेंड लाइक वी आर बिग सपोर्टर्स ऑफ ऑल दिस. So we were like, yeah, it's completely normal, and we just like that. And that guy was like, oh no, हमें तो डर लगता है. And I was literally like, ना, I did that pitching thing. I was like, यार 19 साल के, मतलब I was so disappointed. I'm like, 19 साल के हो तुम्हें हमसे कूल होना चाहिए, तुम पीछे क्यों जा रहे हो. तो थोड़ा सा मैंने उसको बोला उस वे में, यही बोला इनफैक्ट जो मैंने अभी बोला ना, यही बोला कि यार यू गाइस शुड बी वेरी नॉर्मल अबाउट इट. लाइक देयर इज नथिंग ऐसा कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है वो, जितना एबनॉर्मल तुम इसको बना रहे हो इन अ नेगेटिव लाइट. तो उसके बाद वो बंदा सुबह तक वो हर एक चीज़ में मुझे ऐसे ही कमेंट्स कर रहा था. अरे औरतों को तो ऐसा होना चाहिए, अरे औरतों का तो ऐसा, ये तो अभी अपना पैसा रखा होगा बैंक में, पति के पैसे पे जा रही होंगी. यू इमेजिन हियरिंग ऑल दिस फॉर अ वुमन लाइक मी. वो ट्रेन में नहीं होता ना, तो उसको मैं घर पे छोड़ के आती थी कि तू यहीं बैठ अंदर, तेरी जगह यहीं है. बट आई वॉज लाइक यू नो आफ्टर अ मोमेंट माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो वॉचिंग एंड शी वॉज लाइक शी नोज कि मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ किसी को. बट मैं भी ऐसे मूड में थी ना कि मैं चाहती नहीं थी कि ट्रिप के स्टार्टिंग में किसी का मूड खराब हो. एंड वन मोर थिंग वॉज दैट अदर बॉय वॉज वेरी नाइस. सो आई वाज लाइक छोड़ यार, अभी इसको मैं क्या बोलूँ, जिसको मतलब वो खुद अपने आसपास सीख नहीं पाए, उसको मैं क्या सिखाऊं, मैं कौन हूँ ऐसे. तो ये तो मतलब होता ही है कि लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं आपके थॉट से. मेरे क्या, मेरी फ्रेंड्स हैं उनके भी थॉट से हो जाते हैं. आई थिंक हमारे जनरेशन की हर एक लड़की आज के टाइम पे खुद को इतना अंडर रेट कर रही है सोसाइटी में ताकि लोग इंटिमिडेट ना हो. आई यूज टू थिंक कि इंटिमिडेट होना मतलब ओ माई गॉड ऐसा वाला डर होता है स्टार्टिंग में, ठीक है. आई वाज लाइक नहीं, ये और ट्रिगर होते हैं. आप इनको कुछ बोलो और उनका सच उनको बताओ, सिर्फ क्योंकि किसी ने मिरर नहीं किया उनकी रियलिटी, राइट. एंड अ स्ट्रॉन्ग वुमेन कैन एक्चुअली से दैट आउट विदाउट एनी फियर कि ये लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं. आप रख सकते हो सामने के, कोई चुत्यापा कर रहा है हम बोल देंगे कि देखो आप चुत्यापा कर रहे हो, मेरे साथ ये नहीं करना. एंड इनको आदत नहीं होती है कि कोई लड़की आके इनसे ऐसे बात करेगी. एंड दिस इज नॉट बात ना भारती, सेम बात जो आपने बोली, हाँ, कोई लड़का बोलने तो दिल बी वेरी नॉर्मल विद इट. यस एब्सोल्युटली, आई एग्री. सो नॉर्मल. Patriarchy is very भाई deep-rooted. हो सकता है, ये आके मुझे बताएगी. Yes. You getting it? Yes, yes. And there will be guys. I'm not saying there are no good guys. Of course, there are a lot. And अरे society I is have an changing. husband who is so good. Society is changing, but if you see ये जो deep rooted patriarchy होती है ना, it still exists. And even people who are younger, वो जनरेशन जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें भी है ये, बिकॉज इट इज़ दैट डीप रूटेड. अगर आप उनको कुछ बोलते हो तो वो ट्रिगर हो जाते हैं. द मोमेंट दे फील लाइक यार ये लड़की होके मुझे ऐसा बोल रही है, वो उनको कॉन्शियसली नहीं होता है. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि उनके दिमाग में ऐसा रखा होता है कि औरत है ये क्यों बोल रही है. वो ठीक है, वो प्रीवियस जनरेशन थी. न्यू जनरेशन जो अभी तक पेट्रियार्कल है, दे विल नॉट हैव इट कॉन्शियसली, बट इट इज सो इनग्रेन्ड क्योंकि आप समझ रहे हो, रिवीजन हो रहा है उनका. यस यस, वो सिर्फ एक बार पढ़ के एग्जाम नहीं दे रहे हैं. यस, उनका रोज रिवीजन हो रहा है. यस. और उनके घर पे ना वो देखते हैं कि उनकी मदर्स कैसी ट्रीटेड हैं, तो दे विल जस्ट फॉलो द सेम लेगेसी विदाउट इवन रियलाइजिंग दे फॉलो द सेम थिंग. लाइक ये जो आया है कॉन्फिडेंस, ये बचपन से तो नहीं होगा. पहले यू नो इंडियन सोसाइटी इज सो डीप रूटेड इन पेट्रियार्की एंड इट इज सो डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक यू, राइट. तो उस टाइम पे कैसे आपने स्टार्ट किया? हाउ डिड इट स्टार्ट विद अ रेबेलियन? डिड इट स्टार्ट विद के पैसिफाई करके मैं कर रही हूँ कुछ? तो वेयर डिड दिस स्टार्ट फ्रॉम? पहले तो देखो एक्चुअली क्या हुआ ना, I had a, I won't say a very controlling father, but yes, my father was very controlling. Both are the same statements, but ठीक है, थे तो थे. And he had a lot of control over everything. हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे. मुझे ना रात को बाहर रहने की परमिशन ही नहीं थी. बाहर का मतलब ये नहीं बाहर पार्टी करने की, बाहर मतलब अपने घर के अलावा कहीं पे भी रहने की मुझे परमिशन नहीं थी. मुझे अपने मौसी के घर पे भी रहने की परमिशन नहीं थी. तो पहले तो मुझे ये चीज़ें इतना बॉदर नहीं करती थी, बट जब मैं कॉलेज में गई, मैं दोस्तों को देखती थी तो मुझे लगता था यार ये, वो लोग बोलते थे अरे चल स्लीप ओवर करते हैं. एंड आई एम लाइक, एक बार मैंने कैजुअली अपने पापा को पूछ लिया, मैंने कहा स्लीप ओवर है, मैं चली जाती हूँ. तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मुझे मना भी कर सकते हैं वो. तो उन्होंने बोला है स्लीप ओवर,
नहीं 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 ऐसे सही नहीं है ये सब। मैंने बोला अरे सही नहीं है क्या होता है मतलब, क्योंकि मैं तो यार मेरी दोस्त है, मैं जानती हूँ उसको, उसके घर वालों को मेरे घर वाले जानते हैं, तो मुझे बहुत बॉदर किया वो। उसके बाद मैंने बहुत बार तमीज़ से पूछा, उन्होंने हर बार डेडिकेशन से मना किया। फिर एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में जब मतलब मेरी इंटर्नशिप ऑलरेडी चालू हो गई थी, तो 4-5 हज़ार ही सही मैं अपने पैसे कमा रही थी। और जैसे ही पैसे कमाना शुरू किया मेरे पापा ने बहुत ही इंडिपेंडेंटली मेरा पॉकेट मनी भी बंद कर दिया था, तो एक्चुअली मैं खुद से सर्वाइव कर रही थी। तो तब जाके फिर एक पॉइंट आया जब मुझे ना जाना ही था नाइट आउट पे। मैंने अपने पापा को पूछा, उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा पापा आज तो मैं जा रही हूँ। तो पापा ने बोला कि अच्छा, एकदम से एक होता है ना कि आप रिबेल ऐसे नहीं कि बस आपने कर दिया और हो गया, जब पूरा प्रोसेस होता है वो, आपका बोलना, सामने वाला रिएक्शन, उसमें आपका रिएक्शन, फिर उस पर हथियार पहले कौन डालता है, ये गेम है मेन। ठीक है, अब मैंने तो ठान ली थी कि अपने को तो हारने को कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर हारोगे तो जिंदगी भर कहीं जा ही नहीं पाओगे, ये मुझे समझ में आ गया था। प्लस मेरा ना बड़ा भाई भी था, तो उसको बेचारे को शिरडी तक नहीं भेजा था मेरे आंखों के सामने, तो मैं देखती थी कि ये है ना, ये इसके बाद मेरा ही नंबर है, ये इसके साथ ऐसा, इतनी प्यारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में अगर मेरे भाई के साथ ऐसा करे तो मुझसे तो क्या ही उम्मीद है मैं रखूँ। तो तब मैंने उनको पहली बार बोला, मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, बाद में देखेंगे। तो माय फादर वाज लाइक कि नहीं जाना है तो जाओ, अगर कुछ हो गया तो मेरे पास मत आना। मैंने बोला इतना ही ना, बस डन। उस मोमेंट के लिए मुझे ऐसे था ना कि मतलब बस मुझे बस जाने दो, बिकॉज यू नो जो तुम कहीं ना कहीं अगर तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए ना, तो तुम ऐसे पार्ट में नहीं ले सकते कि मुझे ना 40% इंडिपेंडेंस चाहिए, 20% कंट्रोल चाहिए और 40% आप और दे दो, ऐसा नहीं होता है, आपको पूरी लेनी पड़ेगी। तो अगर आप जा रहे हो खुद से इंडिपेंडेंटली रिबेल बन के, तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी साथ में आएगी। आप दोनों नहीं हो सकते, आप ऐसे नहीं हो सकते कि यू नो लाइक आई सेड कि सेफ एंड सिक्योर्ड एंड हाउस पार्टिंग एंड आउटसाइड, ये साथ में नहीं हो सकता, आपको दोनों करना पड़ेगा, दोनों खुद से करना पड़ेगा। So, बहुत सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा मूड को लाइट करते हैं, थोड़ी गेम कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर इट। Now this game is called makeup or breakup. ओके Okay, so I'll tell you certain things, you'll have to tell me quickly if you're going to make up with it or you're going to break up with it. ठीक है, Okay, let's go. यस So are you ready, excited? यस, लेट्स गो फॉर इट। Flaunting cellulite. Ha, definitely makeup. I love wearing short dresses. Let my thighs breathe. Photoshop. Nah, break up. Criticizing skinny influencers. Absolutely NOT, not Not break up. Okay. Yes. Plus size mannequins. Plus size mannequins. Makeup. Makeup like anything. एंड उसके ऊपर कपड़े भी पहना हुआ है, ऐसे नहीं कि मैनेकिन खड़े कर दिए, आने भी चाहिए साइज इंक्लूसिव कपड़े। Of course. Yes. Bikini shoots. Yes, makeup. Skinny privilege. Break up. Workout. Break up. I hate working out. Size 0. Break up. I don't believe in that. Labeling yourself as fat. Break up in capital letters. And उसको भी bold, and उसको भी italic and underline, and then read it thrice. Break up. Telling someone they're unhealthy. Break up. They know better. So ये गेम में आपने कहा कि मैनिक्विन्स को कपड़े भी पहनाने Yes. चाहिए. What is your thought behind it? यार सीरियसली लाइक हम लोग इतना स्लोली जा रहे हैं ना साइज इंक्लूसिविटी की तरफ, थोड़ा भागने की जरूरत है। Is there any brand that you would recommend for plus size women? Yes, there are so many brands. I'll start with one brand that I would love to recommend, because you mentioned bikini shoots also. There's a brand called Plus Curves. It's on Instagram. They have plus size beautiful collection of swimwears. Okay. Swimwears, not like those boring swimwears, like real good swimwears for plus size women, and they have crazy sizes. Okay. Like you name it and they have your size, and girl, you're gonna wear it and you're gonna feel like, oh my god, I should be there in Miami having a cocktail with that outfit. So that is one brand, and there are a lot of brands who are coming. I'm very happy they're coming finally, because it's a big market to capture. Yeah. We have been spending a lot of money on clothes and bad styling. मैं तो इस पे भी I would like to tell you कि मतलब आपने notice किया होगा कि जब आई वॉज ऑलवेज ऑन अ हेवियर साइड, बट इससे ज़्यादा हैवी मैं थी नहीं कभी पहले। तो जब मैंने एक सर्टन साइज क्रॉस किया ना,
तभी मैंने नोटिस किया कि एक्सेल डबल एक्सेल तक तो ठीक है, उसके बाद कपड़े ही नहीं आते। तो उसके बाद अगर आपको कपड़े पहनने हैं ना, तो आपको पता है क्या पहनना पड़ता है? कुर्तास पहनो, लेगिंग्स पहनो। अरे क्यों भाई, दम घुटता है मेरा तो, क्यों पहनूं मैं? नहीं, यही पहनना पड़ेगा, मिलता ही नहीं है। या तो आप वेस्टर्न कपड़े खरीदने जाओ, इतने गंदे से गंदे ट्यूनिक्स पहनाएंगे आपको, एकदम उनके नेक एकदम यहाँ तक डाल देंगे, उनके स्लीव्स एकदम यहाँ तक कर देंगे। पता नहीं क्यों जो लोगों ने बनाया हुआ है ना, देर आर फीमेल्स हु आर लाइक वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल शोइंग आवर आर्म्स, तो दे आर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ फीमेल्स। इन्होंने क्या कर दिया है, अच्छा मोटे इंसान को अपना शरीर दिखाना नहीं है तो ढक दो, कपड़ा डाल दो। क्यों कपड़ा डाल दो? तो अभी फाइनली जाके कुछ ब्रांड्स ये आए हैं, जैसे आई मेंशन प्लस कर्व्स, देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्रांड कॉल्ड एज द शिमर हाउस क्लोथिंग। आई कोलैबोरेट विद देम अ लॉट, आई कोलैबोरेट विद देम फ्री ऑफ कॉस्ट for this reason that they have beautiful collection, like without compromising the size, give us the size inclusive style, give us the size inclusive clothes. हमें ये नहीं चाहिए कि अच्छा कपड़े के नाम पे कपड़ा दे रहे हो, जो कपड़े आप M और S के लिए बना रहे हो वो कपड़े हमारे लिए बनाओ, then the choice हमारी है कि हम उसको कैरी। लोग बोलते नहीं यार मोटे लोग कैरी नहीं कर पाते, आपको कैसे पता? बनाते ही नहीं है। So any more brands that you would recommend to people Yes. of plus size? These two तो definitely for online shopping. Other than this, there's one brand called as Dorabi. They also make size inclusive clothes. Special made पे अभी बहुत सारे बना रहे हैं ऑनलाइन, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि एक्सप्लोर करो, देखते रहो। और देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड एज, मैं मोस्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा ब्रांड्स रिकमेंड करूँगी। देयर इज वन ब्रांड कॉल्ड एज द नूड ऑफिशियल, NUD. दे हैव ब्यूटिफुल कलेक्शन इन प्लस साइज फॉर इन एथनिक वेयर, इंडो वेस्टर्न एंड ऑल दैट। सो ये सारे ब्रांड्स तो डेफिनेटली पीपल कैन चेक आउट, लाइक दैट डूड दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। एंड क्या होता है ना, मतलब जो मैंने बोला ना कि ये लोग पता नहीं क्यों कवर करने पे तुले हुए हैं, इन्हें ऐसे लगता है ये अभी भी वो स्टीरियोटाइप में है कि नहीं यार मोटा इंसान ये सब तो पहन ही नहीं सकता। अरे आपको किसने बोला? आप बनाओ तो सही, पहनेंगे भाई एकदम हक से पहनेंगे, फोटोज भी निकालेंगे, डालेंगे भी एंड आपको प्रमोट भी करेंगे। मतलब मैंने भारती, नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम मैंने सोचा था कि आई एवर डू मॉडलिंग, but thankfully a friend of mine had a brand. She was the first person who ever approached me for modeling. Okay. And I was like, I'm always open to new things, always, like new experience, bring it on. So I said, like very happily I said yes, and like one after another I started getting few modeling assignments, and you won't believe, through this I've recently done a modeling assignment, a small project, which is going to become a big thing in my life because this is the first time I'm going to come on national television. What? So yes, Okay, absolutely. tell me more. So there's this brand called as Dorabi. It's a beautiful brand and they are into tie-dye clothing, and yes, size inclusive. They must be size inclusive. That was like the first criteria for me. But yes, they are size inclusive and they have beautiful collection. So they were one of the pitching brands in Shark Tank, and I did a modeling walk from them, and oh my god, it was like the day I entered in Film Are City. you going to feature in Shark Tank now? Yes, That yes, is yes, lovely. Wow, yes, wow. yes. Congratulations. And you know, I'll tell you, we were talking about all this owning yourself and self-love and manifestation and like visualization. Manifestation works. This was the first experience that I've had because when I started with 2024, you know, by the end of 2023 only, I used to like every time आप कोई भी प्रोफेशन में हो तो आप खुद के लिए थोड़ा सा बेंचमार्क बनाते हो कि अभी अगले साल में आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, क्या तुम्हारे एक छोटे मोटे से सपने होते हैं। तो मैं ना बहुत कैजुअली, मतलब ऐसे बोलती थी, कैजुअली इसके लिए बोलती थी कि जोर से बोलने मुझे शर्म आती थी कि कोई मुझे बोलेगा कुछ भी बोल रही है, मतलब इतना इससे थोड़ी ना होता है, तो खुद को ही लगता था, बट बोलती थी ठीक है चलो। तो आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि यार मतलब मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से ना मुझे कहीं ना कहीं छोटा सा एक मौका मिले कि बस चाहे 2-3 सेकेंड का हो, पर मुझे टीवी पे आना है। आई वॉन्ट टू कम ऑन नेशनल टेलीविजन, मुझे बताना है, अपने पोते पोती को बताना है तुम्हारी दादी टीवी पे आती थी, ठीक है। सो आई वांट टू डू इट फॉर माई सेल्फ एंड आई जस्ट स्टार्टेड लाइक सेइंग इट लाउड एंड लाइक जस्ट स्टार्टेड पुटिंग आउट इन द यूनिवर्स, एंड लिटरली बाय द एंड ऑफ 2024 Shark Tank happened. When they called, I can't tell you, I was like Farhan Akhtar from Luck by Chance. मतलब कैसे वो उसका फोटो पहुंच जाता ना, वैसा मेरा हुआ कि मैंने एक रैंडम ब्रांड के लिए शूट किया था, उसमें फोटोग्राफर था, ही लाइक्ड माई वर्क, ही रिकमेंडेड माई वर्क टू अनदर फोटोग्राफर, and उसके थ्रू दैट ब्रांड दे वांटेड मॉडल्स इन मुंबई. इट्स लाइक माई लिटिल ड्रीम वाज, या एंड एक तो मैं इतना घूमती रहती हूँ, इतना ट्रैवल करती रहती हूँ, थैंक गॉड मैं उस टाइम पे यहाँ थी
मतलब मुझे सबसे ज्यादा डर ही वो लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आती एंड मैं अगर कहीं भटक रही होती ना भाई साहब, मैं कूद जाती अगर मैं पहाड़ों पे होती तो, कि अगर मुझे शार्क टैंक का ऑफर आता और मैं पहाड़ों पे हूँ कि मैं, और क्योंकि वो एकदम ऐसा था कि 4 दिन में शूट है सीधा, तो मुझे ऐसा था कि मतलब दे आर लाइक आर यू अवेलेबल, आई एम ऑल योर्स, मैं सोच सकती हूँ वहां पे आके, बताओ तो ऐसा. So this brand that you modeled for, how is this? Could you tell a little bit about this brand? What is it all about? Because why I'm asking this, because there will be a lot of plus size women who will be watching this podcast. So I want कि उनको पता चले, and if the products are really nice, they can actually buy from that brand. You can actually watch the products on Shark Tank. The products are beautiful. So I'll tell you, the brand's name is Dora B, and it's a woman-led brand. Yes. There's इसीलिए उनको समझ में आ रहा है. Yes, so Ashima Batra is the founder of this, and you know, she has beautiful collection using different techniques of tie-dye. Okay. And when I say different techniques, oh my god, you'll see the collection, you'll be like, ऐसा भी होता है ऐसा. So it's very beautiful, it's very raw. Somewhere, you know, people who love like all this sooty, natural silk, and at the same time, you know, subtle vibe, but they want to bring out a style statement. This is a brand for them, and they are size inclusive, and they are budget friendly also. So it's not like extremely expensive, it's in good budget. So definitely a brand I would like to recommend, like all the ladies from all age groups, because the collection is like very beautiful. Okay. So शमा, अब एक काम करते हैं, हम एक और गेम कर लेते हैं. Okay, चलो खो खो ही खेल लेते हैं. नहीं, let's do this. So this is basically a word association game. What you Okay. have to do is, I will say something, I will say a word, and then you will have to answer me. You don't have to take time. Okay. जो भी दिमाग में आएगा immediately बोलना है. Oh God, this is a very risky game. वो भी मेरे दिमाग में कुछ भी आता है. पोल खुल गई. मुझे इस पे टेप लगाने की जरूरत है. आप और खुलवा रहे हो. No, with BTS it's not going to happen. Okay. You're going to be a statement ही है. हम अपने guest को raw, real self निकालने को कहते हैं. So we create that kind of environment where it comes out. Bring it on. Okay. Excited? Very. Nervous? Yes. Very से That's ज़्यादा. good. That's good. That's Very what से I want. ज़्यादा. I want to see like you. That you should give me. I should read that. Okay. So confidence. Me. Curves. Beautiful. Stretch marks. Fashion. Lovely for all. Trolls. Society. Society. Patriarchal. Sorry. Food. I love it. Favorite food. Vada pav. वड़ा पाव. ये एक सच्चा महाराष्ट्रन ही बोल Yes. सकता है. Everything with pav लेके आओ. Good. Self love. Learning. Bikini. I love it again. Vulnerability. Problem. Marriage. Beautiful. Companionship. Everything nice. Like touch wood. Travel. Universe. Listen to it. Size inclusive. Not many brands in India. Perfection. My problem again. It's not very good. Going for perfection. Styling. Fun. Beauty. Subjective. And the last one, Shama. Shama. Oh God. Open book. Open book. Come and read. Come and read. Yes. So, Shama, that was the end of podcast. Oh my God. I'm sure there's a lot to talk about. We'll talk after this. So, if this is received well, I would love to invite you for the second podcast again. Oh my God. Because बहुत सारी बातें हैं जो मुझे खुद को भी करनी है, and if we receive the love, which I hope we do. We'll do. Universe, are you listening? Please make it happen. Please let me come on BTS again. Let BTS be the biggest platform. And I'll be sitting here and I'll be charging a lot of money from Bharti. Done. But definitely. So thank you, Shama. I hope you had fun. And thank you for opening up. Thank you for being vulnerable a lot of times, which you thought you wouldn't be able to. ये सब आपके लिए हुआ है. So I hope we get all the love that we deserve. बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे. जो गेस्ट हैं वो बहुत ओपन अप हो रहे हैं. So
Thank you so much for watching. Thank you, Shama, for being here. Thank you so It was much. great to have you. Thank you so much. Have me again. I'm wonderful. Definitely. So guys, if you like this, don't forget to like, comment, subscribe and hit that bell icon. See you.